Good morning, my dear students. So, beta, as you know, we have started our revision classes. So, in this revision class, we are going to revise the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. So, in this chapter, we have discussed already about the nomenclature, structure, the method of preparations of aldehyde ketones, their physical properties, their chemical properties, conversions, different types of mechanism like nucleophilic addition mechanism, reactivity of alpha hydrogen. So these topic we have already discussed very detail during classes. So we are going to study about the exam based question now. So how can the following conversion be brought about? ठीक है, तो हम कैसे ये कन्वर्जन्स कर सकते हैं? फर्स्ट इज मिथाइल क्लोराइड टू एसीटोन and second is acetaldehyde to acetamide. ठीक है, so I'm going to show you how we can do such type of conversions. So first is methyl chloride. As you know, this is the formula of methyl chloride. In the presence of KCN, we can convert it into the firstly methyl cyanide. तो हमने KCl की जगह पे क्या लगा देना है? साइनाइड, और यहाँ पे क्या निकलेगा? KCl. ठीक है, H positive in the presence of water will get CH3COH. Okay, then in the presence of calcium hydroxide we'll get CH3COO 2 times and Ca. Okay, then we will add in this distillation करेंगे हम इसकी and we'll get CH3COCH3. So this is a acetone. Methyl chloride to second is acetaldehyde to acetamide. ठीक है, सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO. ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में करना है? एसीटामाइड में. तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज CH3CONH2. and we can convert it in the presence of sodium chromate and sulfuric acid. CH3 C double bond O OH. Along with that there will be excretion of PCl5. ठीक है, then we can convert it into plus HCl plus POCl3. इसमें हम जब ऐड करेंगे अमोनिया, ठीक है, ये एरो आप इसके आगे भी लिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देन CH3CONH2. along with that there will be the excretion of ammonium chloride, that is called acetamide. ठीक है, so this is the conversion 1 and this is the conversion 2. So let's proceed to the second question, that is identify the product A, B and C. the question में आपको इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको इसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, C6H5 मिथाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस की प्रेजेंस में A क्या बनाएगा? ठीक है, देन A से B क्या बनेगा हमारे पास, और B से C क्या बनेगा, D क्या बनेगा. तो आपको ये प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं. ओके, सो लेट्स सी कैसे होंगे ये.
बट प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा गिवन है और उसमें रिएजेंट कौन सा डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास C6H6 है, एक H यहाँ से निकलेगा, HCl की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा एंड वील गेट टोलीन, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज C6H6, अब यहाँ से एक H in the presence of methyl chloride or AlCl3 will get 1 C6H5, एक H यहाँ से निकला और उसने रिएक्ट करना है CH3 की जगह पे और एक जो H यहाँ से निकला है वो Cl के साथ निकल जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट A। अब बेंजीन के साथ मिथाइल लगा हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टोलीन, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास कि इसी में अगर हम ये ऐड करें, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में तो क्या आएगा। सो लेट्स सी, इसी में अगर हम फर्दर ऐड करते हैं CrO2 Cl2 along with that CCl4, ठीक है, we'll get C6H5CHO, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप एंड विल गेट बेंजल्डिहाइड। देन इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन COD क्या आएंगे, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में वी विल गेट C6H5CH2OH प्लस C6H5COO Na। This is called benzyl alcohol and sodium benzoate. So this is benzyl alcohol, sodium benzoate. Okay, so this is all about the question 2. Next question is, give one chemical test for each of the following and distinguish the pair of the compounds. So there are different types of chemical tests which we use to identify the presence of acetaldehyde या aldehyde ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, एंड एज वी नो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट विल गिव्स अस अ सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिल्वर पीपीटीज फॉर्म होंगे। दैट टेस्ट इज कॉल्ड अ टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि अगर हम दोनों को अलग अलग केमिकल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो what we'll do, first we will take formaldehyde in one test tube and in the second test tube we will take acetic acid. So formaldehyde को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें ऐड करेंगे टोलेंस रिएजेंट तो वो हमें क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा, ठीक है। इट विल गिव्स अस अ silver mirror test when it is heated with toleranz reagent. But whereas if we talk about the acetic acid, ठीक है, तो acetic acid does not give this silver mirror test. So it confirms the presence of silver mirror test. से हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, नॉट एसिटिक।
या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा वो, ठीक है, एसिटिक एसिड नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो आपने यही लिखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट व्हेन हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट, whereas acetic acid does not give that test. So we can distinguish with the help of this tolerance reagent test. The second part is acetaldehyde और एसीटोन। अब देखें ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप, ओन है सोफिक्स, तो कौन सा ग्रुप होगा, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में फिर आइडेंटिफाई करना है हमें कि इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ अगेन बाय द टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। वी आर गोना यूज टॉलेंस रिएजेंट, सो आई एम गोना शो यू अ रिएक्शन हाउ दिस reagent react with that and gives a, अब देखें अगेन हमारे पास जो एसीटोन होगा या एल्डिहाइड है वो हमें क्या पता है कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है। एस्टर एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड दोनों हैं तो एल्डिहाइड ही ना, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड हैं। तो हम जब भी इनमें टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करते हैं तो इट गिव्स अस अ सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। बट अगर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है तो वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। सो यहाँ से भी हमें क्लियरली समझ आ गया कि एस्टरल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट इट गिव्स अ सिल्वर मिरर टेस्ट, whereas acetone does not react with tolerance reagent, hence it does not give a tolerance reagent test, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि अगर वो सिल्वर मिरर टेस्ट उसमें नहीं आ रहा है तो एसीटोन कन्फर्म है कि वहाँ पे एसीटोन हो सकता है, बट अगर वो रिएक्ट करके दे रहा है तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एस्टरल्डिहाइड। तो एक ही आपको आइडेंटिफाई करना है, तो एसीटोन और या फिर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टरल्डिहाइड, ये दोनों रिएजेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ एंड दे बोथ गिव्स अस दैट टेस्ट एंड फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ aldehydes. Okay, so let's proceed to the next question. How will you convert the following give balanced equation? First conversion is benzoyl chloride to benzaldehyde. आपको conversions लिखनी है कि कैसे हम बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड में, मिथाइल क्लोराइड को एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड को मीथेन में, ठीक है। सो लेट्स सी, बेंजोइल क्लोराइड टू benzaldehyde So firstly we'll draw the diagram of benzoyl chloride. So benzoyl है तो benzene है, aryl है, that means alkyl group. One H is removed from here and we have a C double bond O Cl group. Along with that we will add palladium along with barium sulfate H2 and we will get benzaldehyde. Reagents plays a very important role, so you must learn reagent while revising the chemical equation. So this is benzoyl chloride, but as you are supposed to write, I am writing here C double bond O, you can write over here, okay. In the second part there is a conversion of methyl chloride to, let me show you, methyl chloride to एसिटिक एसिड, ठीक है। सो मिथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, जी अभी हमने भी की थी, उसमें हम क्या करेंगे, केसियन ऐड करेंगे। केसियन ऐड करने के बाद वो किस में चेंज होगा, मिथाइल साइनाइड के फॉर्म में चेंज होगा। जैसे ही हम उसमें हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H पॉजिटिव ऐड करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड along with the release of ammonia, okay. So the next is acetic acid to methane. हमें क्या प्रिपेयर करना है, acetic acid to methane.
third is acetic acid to methane. So write the formula of acetic acid, CH3COH, which is one of the carboxylic acid. Then we'll add sodium hydroxide. We will add sodium acetate. There will be the removal of water. ओके अब अभी तक हमारे पास मीथेन नहीं आई, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है. यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो विल गेट सोडियम एसीटेट. दिस इज अ सोडियम एसीटेट. नाउ अब सोडियम एसीटेट में हम फिर से ही एल्कली ऐड करेंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, and we'll get a methane. So let's see the second step, that is CH3COO plus sodium hydroxide. It gives, in the presence of calcium oxide, it will form methane. Along with that there will be the formation of sodium carbonate. Okay, so दिस इज़ द नाउ एंड ऑफ द रिएक्शन. कि हमें क्या बनाना था, मीथेन, ठीक है. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. सो ऐसे ही कन्वर्जन्स करनी है. नाउ वन कन्वर्जन्स, दिस यू आर गोना डू दिस बाय योर ओन, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड टू इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. आई गिव यू इंट्रो कि कैसे करना है. अ कीटोन आपको दिया हुआ है C4H8O विच अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन. दैट मीन्स कि हम कोई भी कीटोन लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे हमने प्रीवियस वाली क्लास में भी किया था, सेम ही है, वैसे क्वेश्चन करना है हमें. एक कीटोन दिया है, ठीक है, दैट दिस इज 4 कार्बन, तो इट इज़ ब्यूट, और सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है ऑन, ठीक है, ब्यूट 2 ऑन. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, इसी को कंसिडर करते हुए दिस इज द कीटोन विच अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन एंड विच गिव्स कंपाउंड बी. हम इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, बी कंपाउंड. कंपाउंड बी क्या होगा अब हमारे पास बेटा, इसके बाद इसकी क्या होनी है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे सेम जो हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O होगा और उसके साथ CH2 CH3 लगा है, ये दिस इज़ अ ब्यूटेनॉन. 4 कार्बन आइटम विल बी देयर एंड दिस 4 कार्बन आइटम जैसे ही हम इसमें एडिशन करेंगे H2 की, एडिशन करने पे क्या होगा, दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड यहाँ पे H लग जाएगा. ठीक है, बात समझ आइए. रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन करेंगे हाइड्रोजन की, तो कैसे होगा, यहाँ पे जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, हीट करेंगे, तो दिस बॉन्ड डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड विल गेट ब्यूटेन 2 ऑल. सो बी प्रोडक्ट विल बी ब्यूटेन 2 ऑल. ऑन रिडक्शन B, on heating with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, ठीक है, हमने फिर से जो हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल आया है उसमें 443 केल्विन टेम्परेचर को हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो विल गेट C कंपाउंड. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्कीन. C विल बी एल्कीन. सो यू आर गोना प्रिपेयर दिस नाउ. ब्यूट 2 इन वी हैव. अब उसमें ओजोनाइड ऐड करेंगे. सो बेटा ओजोनाइड मीन्स O3. ओजोनाइड जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास ओजोनाइड रिएक्शन हो जाएगी. डी फॉर्मेशन जो होगी दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड. जैसे ही हमारे पास इसमें ऐड करेंगे हम O3C में, तो विल गेट ओजोनाइड. तो कॉम्प्लेक्स बनेगा. और डी ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगेन उसमें हम एडिशन कर दें वाटर की जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो इट गिव्स अस E. तो E is acetaldehyde. So this reactions you will write it by your own, and if you have any query regarding that, we will discuss that. Okay, and it's mandatory for everyone to write questions.
होमवर्क नोटबुक पे आपने क्वेश्चंस अभी तक सेंड नहीं किए. जिसने भी नहीं किए, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू सबमिट देयर होमवर्क. Got it? So you must submit your homework today. So next, this question is your homework and this question is your homework. Identify compound A, B and C in the following. First is benzene. अभी जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ ऐड किया तो विल गेट, अब यहाँ पे क्या होगा, एक H निकलेगा और टोलीन बन जाएगा. दिस विल रिप्लेस ओवर हेयर. तो फर्स्ट प्रोडक्ट यही आ गया हमारे पास. और अगेन ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल वाले में टोलीन की ऑक्सीडेशन होगी तो विल गेट बी प्रोडक्ट दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, देन नेक्स्ट इज CH3CO. इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो व्हाट विल बी द product A in the presence of this reagent and the presence of this reagent. So these two questions you are supposed to, this one conversion and these two questions you are supposed to write it on your homework notebook. Okay, so this is all here about today's revision. We are going to proceed this chapter tomorrow also. Thank you.